हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस 131, 132, 133। कल मैंने पढ़े थे 129, 130 एंड 131 आर्टिकल्स को पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ये तीनों अनुच्छेद मैंने पढ़े थे। तो चले थोड़े से बाल कर लेते इधर। तो चले स्टार्ट करें। ओके, 131 ए क्या कहता है? कहता है एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द Supreme Court in regard to questions as to constitutional validity of central laws repealed by the Constitution 43rd Amendment Act 1977 S4 WEF 13/4 1978 Article 132 Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from high courts in certain cases. 132 Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from high courts in certain cases. Number 1. Appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order of a high court in the territory of India, whether in civil, criminal or other proceedings. If the High Court certifies under Article 134A that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution. Number 2. Whether such a certificate is given, any party in the case may appeal to the Supreme Court on the ground that any such question as aforesaid has been wrongly decided. Explanation. For the purposes of this article, the expression final order includes an order deciding an issue which, if decided in favor of the appellant, would be sufficient for the final disposal of the case. (133) आर्टिकल क्या कहता है? Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from high courts in regard to civil matters. 133 आर्टिकल्स क्या कहता है? कहता है Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from high courts in regard to civil matters. Number 1. An appeal shall lie to Supreme Court from any judgment, decree or final order in a civil proceeding of a high court in the territory of India, if the high court certifies under Article 134A, number A, that the case involves a substantial questions of law of general importance, and B, that is the opinion of the High Court, the said question needs to be decided by the Supreme Court. Number 2. Notwithstanding anything in Article 132, 132, any party appealing to the Supreme Court under Clause 1st may urge as one of the grounds in such appeal that a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution has been wrongly decided. Number 3. Notwithstanding anything in the article, no appeal shall, unless Parliament by law otherwise provides, lie to the Supreme Court from the judgment, decree or final order of one judge of a high court. हम इसका हिंदी में पढ़ती हूँ। अनुच्छेद 132 का
संविधान का अनुच्छेद 132 क्या कहता है? का 132 अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 131 का संविधान का अनुच्छेद 131 का बताता है केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता के बारे में। आर्टिकल अनुच्छेद 131 का केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता। संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 4 द्वारा 13/4/1978 से निश्रित यानी इसको निकाल दिया गया है। 1977 की धारा 4 द्वारा 13 अप्रैल 1978 से रिपील्डेड निश्रित पता नहीं क्या है निश्रित, बाद में देखूंगी। आर्टिकल 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 132 अनुच्छेद क्या कहता है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। नंबर 1, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, डांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वे उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है तब। नंबर 3, जहां ऐसा प्रमाण पत्र दे दिया गया है वहां उस मामले में कोई पक्षकार या आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा कि पूर्वोक्त किसी प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है। ऐसे मामले में स्पष्टीकरण इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए अंतिम आदेश पद के अंतर्गत ऐसे विवादक का विनिश्चय करने वाला आदेश है जो यदि अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है तो उस मामले के अंतिम निपटारे के लिए पर्याप्त होगा। अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। नंबर 1, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में विधि के व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है। नंबर उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है। अनुच्छेद 2 नंबर 2, अनुच्छेद 132 में किसी बात के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय में खंड 1 के अधीन अपील करने वाला कोई पक्षकार ऐसी अपील के आधारों में यह आधार भी बता सकेगा कि इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है। नंबर 3, इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में तब तक नहीं होगी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे। हमें पढ़ लेती हूँ उसका संशोधन। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट।
किसके अंदर, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैब्लिशमेंट और गठन है उसके अंदर क्या अभी तक हुआ है। नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन substituted by the Constitution 13th Amendment Act 1972 S24 clause first WEF 27 to 1973. Number 2, substituted by the Constitution 44th Amendment Act 1978 S 18 for if the High Court certifies WEF first date 8/1979. Number 3, substituted by the Constitution 44th Amendment Act 1978 S 19 for certifies WEF first 8/1979. Number 4, inserted by S 20 EVID WEF first 8/1979. हिंदी में पढ़ लेती हूँ। नंबर 1, संविधान 33वां संशोधन अधिनियम 1972 की धारा 2 द्वारा 27/2/1973 से खंड 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 2, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 18 द्वारा 1/8/1979 से यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे के स्थान पर प्रतिस्थापित। यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 3, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 19 द्वारा 1/8/1979 से प्रमाणित करता है के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 4, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 20 द्वारा 1/8/1979 से अंतःस्थापित। And number 8, substituted by the Constitution 54th Amendment Act 1986 S24 clause first WEF first 4/1986. नंबर 1, संविधान 54वां संशोधन अधिनियम 1986 की धारा 2 द्वारा 1/4/1986 से खंड 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित। अब ये नंबर 1, inserted by the Constitution 15th Amendment Act 1963 S3. Number 2, substituted by the Constitution 7th Amendment Act 1956 S5 for the proviso. Number 3, inserted by the Constitution 42nd Amendment Act 1976 S23 WEF 1 to 1977. Number 4, substituted by the Constitution 44th Amendment Act 1978 as 17 for if the High Court certifies WEF first 8/1979. Number 5, clause second omitted by S 17 EV WEF first 8/1979. 6, certain word omitted by 17 EV WEF first 8/1979. संविधान 15वां नंबर 1, संविधान 15वां संशोधन अधिनियम 1963 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित। नंबर 2, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 5 द्वारा परंतु के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 3, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 23 द्वारा 1/2/1977 से अंतःस्थापित। नंबर 4, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 17 द्वारा 1/8/1979 से यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 5, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम
1978 की धारा 17 द्वारा 1/8/1979 से खंड 2 का लोप किया गया है। नंबर 6 संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 17 द्वारा 1/8/1979 से कुछ शब्दों का लोप किया गया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना। कल पढ़ूंगी आर्टिकल 134 एंड 134A एंड 135। आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर प्लीज़। जय संविधान, जय भीम।